Okay, so let's start our next lecture. Okay, so we were talking about the MOS logic family, and we discussed about this MOSes, MOS, CMOS inverter. We have talked about CMOS non gate, CMOS NOR gate. Okay, so the important thing is to know the voltage levels. Okay, so specifically we need to know what are the voltage levels. Okay, so on the table it is given there that the low voltage level in the CMOS we can get is as low as 0 volt, and the high voltage is close to 5 volt. So this is one of the advantage of the MOS that we can get in CMOS. Okay, so we can get a larger noise margin. Okay, so this is one of the advantage of CMOS over MOS, over PMOS, NMOS, and over TTL as well. Okay. So if we talk about the power dissipation, so the power dissipation when a CMOS logic circuit is in a static state, I discussed this with you all that in the static state the power dissipation in the CMOS is almost negligible. Okay, only the when the circuit changes the states from high to low, it dissipates the power. So this is the reason that takes very less power. So I've explained everything about the power. Okay, so this portion is not important. Actually, what we say about this power dissipation, PD increases with frequency. Yes, this PD stands for the dynamic power dissipation, while the static power dissipation is extremely low, and at times we call it as the zero. Okay, so this PD is a dynamic power dissipation. So in the dynamic power dissipation is actually dependent on the value of the frequency. If we are using the same MOS at higher frequencies, it will consume more power because the power is given by dynamic power is given by F into C is the capacitance, the load capacitance into VDD square, the supply voltage square. Okay, so that tell us that by using this it will consume more amount of power. Okay, so for this reason this PD depends on the power as well. Okay, so how we define the power is like F into C is the load capacitance. Okay, the capacitance connected at the output side, it is automatically present into VDD square. Okay, cap 2. Okay, so VDD is the power supply वैल्यू. ठीक है, VDD को यहाँ पर ऐसा दिखेगा. तो पावर सप्लाई है तो आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर क्या है, ये वैल्यू है. दिस इज एक्चुअली द ED, the power dissipation. Okay, and dynamic power dissipation. Okay, so dynamic power dissipation increases with the frequency, and we do not want this to be. So if we use the same MOS at the higher frequency, the power dissipation will be large. Okay. So although this is not needed, this I told you. And what is next in this is, yes. Okay, so this is how the power dissipation. This is the load capacitance which I marked C. So you see load यहाँ पर connect है. So यहाँ पर होता है कि on state में जब ये ऊपर वाला PMOS on होता है तो उसको charge करता है capacitance को, और जब PMOS off होता है नीचे वाला on होता है तो ये इसको discharge करता है. ठीक है. So this actually how it works. The और ये तो सिर्फ एक इन्वर्टर के लिए दिखा रहा है. सारे सर्किट्स इसी तरीके से MOS के और CMOS के वर्क करते हैं. ऑन स्टेट में PMOS ऑन होता है तो ये 5 वोल्ट के थ्रू कैपेसिटर चार्ज होता है, ये हमारा लोड कैपेसिटेंस कहलाती है. और जब ये PMOS ऑफ होता है, NMOS ऑन होता है तो ये कैपेसिटेंस यहाँ के थ्रू डिस्चार्ज हो जाती है. ठीक है. सो इन दोनों स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में, इन दोनों के बीच में कोई पाथ नहीं मिलता है तो यहाँ पर स्टैटिक पावर डिसिपेशन जीरो होती है. जब हम स्टेट स्विच कर रहे होते हैं हाई से लो या लो से हाई, इस केस में एक डायरेक्ट पाथ मिलता है यहाँ से यहाँ के बीच में, सप्लाई और ग्राउंड के बीच में, तो एक डायनेमिक पावर कंजम्पशन होता है. ठीक है. तो ये जो पावर डिसिपेशन है, डायनेमिक पावर डिसिपेशन लोड की वैल्यू पर, सी लोड पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, और VDD जो पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है. ठीक है.
फैन आउट की जैसे बात हो चुकी है, फैन आउट इज एन इम्पोर्टेंट metric that we should see about logic family. So फैन आउट में इसमें खासियत ये है कि इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। So like NMOS and PMOS, CMOS inputs have an extremely large resistance, क्योंकि आपको पता है इनपुट रेजिस्टेंस क्या उतना होता है, जीरो, इनफाइनाइट होता है मोस्ट से। क्यों? क्योंकि मेटल होता है, फिर ऑक्साइड होता है, देन सेमीकंडक्टर। व्हेन इट इज ऑक्साइड इट इज इंसुलेटेड। तो इनपुट करंट क्या होती है, गेट में फ्लो वाली करंट क्या होती है, जीरो होती है। जब गेट फ्लो वाली करंट ऑलमोस्ट जीरो होती है हमारे, तो हमें क्या दिखता है, जब करंट जीरो है तो क्या है, रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। सो करंट जीरो तो नहीं, लेकिन बहुत नैनो एम्पियर्स में होगी, सो द रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज। So no current from signal source is drawn to the gate। तो इस वजह से इसका जो हमारा लोड है वो, सॉरी फैन आउट है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक दूसरी प्रॉब्लम होती है, each CMOS input however typically presents a 5 picofarad load to the ground, ठीक है। तो ये जब हम ऐसे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ लोड कैपेसिटेंस दिखाई देती है, ठीक है। तो ये एक इंटरनल कैपेसिटेंस होती है। कैपेसिटेंस कहीं भी एक अगर हम आईसी बनाते हैं तो जहाँ पर भी वोल्टेज डिफरेंसेस होते हैं वहाँ पर स्ट्रे कैपेसिटेंसेस प्रेजेंट होती हैं। ये पैरासिटिक्स कहलाते हैं, इन्हें बनाया नहीं जाता है, बट दे आर प्रेजेंट विदाउट देयर फैब्रिकेशन, बट दे विल प्रेजेंट देयर। This input capacitance limits the number of CMOS inputs that one CMOS output can drive। ये तो यहाँ पर कैपेसिटेंस होगी, यहाँ पर देखिए ये भी एक कैपेसिटेंस है, दूसरी कैपेसिटेंस है। तो ऐसी कैपेसिटेंस ये सारी क्या है, पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, आपको पता है पावर डिसिपेशन भी इसकी बढ़ जाएगी, और कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी तो क्या होगा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में टाइम ज्यादा लगेगा। आपको मालूम होगा कैपेसिटेंस का चार्जिंग डिस्चार्जिंग आरसी होता है, ठीक है। तो आरसी चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम कम होना चाहिए, उस वजह से क्या होगा कि वरना हमारा डिले बढ़ जाएगा, ठीक है। सो इसमें भी लिमिटेशन है कि हम बहुत ज़्यादा लोड कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन इस वजह से आ जाती है कि दैट वी शुड हैव अ लेस नंबर ऑफ लोड्स। ओके, सो स्विचिंग स्पीड की बात भी मैंने आपको बता दी। स्विचिंग स्पीड, पावर प्रोपगेशन डिले जो होता है, ठीक है। CMOS like NMOS, PMOS must drive relatively large load capacitances. Its switching speed is somewhat faster because of its low output resistance in each state. And NMOS और PMOS जो हम इंडिविजुअल सर्किट्स बनाते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक NMOS बेस्ड इन्वर्टर देखा था, उसमें क्या होता है जो NMOS का होता है, तो ऊपर वाला जो NMOS था वो बाय डिफॉल्ट जो था वो हमेशा ऑन था, तो वो उसका रेजिस्टेंस ऑफर्ड आपने देखा होगा एक 100 के था, उसका हमेशा ऑल स्टेट दैट वाज ऑफरिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 के। और जो NMOS स्विच ऑन और ऑफ हो रहा था वो ऑफ स्टेट में तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा था, और जो ऑन स्टेट में बहुत कम रेजिस्टेंस दे रहा, 1 के करीब दे रहा था। सो वो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस था दैट वाज ऑफरिंग अ कंटीन्यूअस हाई रेजिस्टेंस, दैट इज 100 के। But you know that in the on state of PMOS it offers a low resistance, in the on state of NMOS it offers a very low resistance. So because of this two reasons, the CMOS offers a very low output resistance। So दोनों ही केस में क्या है कि इसका आउटपुट रेजिस्टेंस या तो NMOS का होगा या PMOS का होगा, दोनों ही केस में ये 1 किलो ओम होगा जो कि कम होगा। और आपको बताया कि चार्जिंग कोएफिशिएंट कैसे होगा, आरसी से डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो आर इंटू सी, तो आर की वैल्यू हमारा जितना कम होगी उतना टाइम कम लगेगा, तो चार्जिंग उसकी उसमें फास्ट होगी, और डिस्चार्जिंग जितना फास्ट होगी तो ये क्या होगा, हमारे डिले को कम करेगा और स्पीड को हमारी बढ़ाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस हमारा ऑन स्टेट वाला बढ़ जाए, ठीक है, तो जैसे कि हमारा उस केस में था, ठीक है, पहले वाले में उसको मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट टू रिमाइंड यू, ठीक है। ये वाले सर्किट में आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या था कि ये वाला मॉस हमेशा ऑन है, तो ये देखिए आर ऑन स्टेट में हमेशा कितना दे रहा है, 100 किलो ओम दे रहा है। लेकिन जब ये ऑन होता है तब ये 1 किलो ओम देता है, जब ये ऑफ होता है तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। सो इस वजह से हमारा ये 10 पावर 10 की ऑर्डर का देता है। तो इस वजह से हमें ये फायदा सीमोस में है, क्योंकि जब इसमें तो ऊपर वाला ऑन है या नीचे वाला ऑन है, ठीक है, तो दोनों ही केस में हमें 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमें सीमोस इन्वर्टर में मिलता है। ये सीमोस इन्वर्टर आप देख लीजिए, एक बार मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर या तो ये ऑन होगा नीचे वाला, तभी ये ऑन होगा तभी 1 किलो ओम देगा,
या फिर ये ऑन होगा तो ये 1 किलो ओम देगा, तो रेजिस्टेंस हमेशा में कितना मिलेगा, 1 किलो ओम मिलेगा। आर इंटू सी से कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम माने, सो आर इंटू सी से what we will get a resistance value of 1 kilo ohm throughout, and because of this the charging will be fast and the discharging will also be fast, so the speed of the overall the speed of the circuit will improve. So these are some of the advantages of the MOS. High noise immunity, हाई नॉइज मार्जिन जो हमने बताया आपको, क्योंकि इसमें लो लेवल जो 0 होता है, हाई लेवल कितना 5 होता है, तो दोनों बीच टोटल डिफरेंस कितना 5 वोल्ट का डिफरेंस है, that gives the high noise margin. Low static power consumption, almost it's like zero, you can say it's like nearby zero. Okay, so very low static power consumption in the CMOS case. Do not produce as much waste heat as other form of logic. other logic family में waste heat ज़्यादा होती है, क्योंकि वेस्ट हीट उसमें हर स्टेट में होती है, जब स्विच कर रहा होता है तब भी वेस्ट हीट होती है, ठीक है, तब भी सर्किट ऑपरेट कर रहा होता है, ठीक है, और जब ऑन स्विचिंग नहीं कर रहे हो तो तब भी उसमें हीट वेस्ट होती है अदर्स में। इसमें क्या है कि आधे ही नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन होंगे, या तो ऊपर के साइड के ऑन होंगे या नीचे के साइड के ऑन होंगे, तो ऑल द टाइम द फुल सर्किट विल नॉट बी ऑन, ठीक है। और इसमें एक रीजन और भी है कि गेट करंट क्या जीरो है, और बीजेटी में देखा जाए तो मिली एम्पियर्स में करंट फ्लो होती है, मॉस में जो माइक्रो एम्पियर्स में भी सर्किट सफिशिएंट करंट होती है, ठीक है। सो दैट इज आल्सो अ रीजन ऑफ लेस अमाउंट ऑफ हीटिंग। allows a high density of logic functions on a chip, ठीक है। आप एक चिप पर ज्यादा, मैंने आपको बताया था कि एरिया कंज्यूम बाय CMOS is much smaller than the BJT. It was primarily for this reason that CMOS became the most used technology to be implemented in VLSI chips, ठीक है। तो VLSI chips में very large scale integration chips में जो है वो CMOS की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। Limitations क्या है, CMOS circuits are quite vulnerable to ASD damage. Because of this issue, modern CMOS ICs are now equipped with on-chip ESD protection, ठीक है। सो ये एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा एनर्जी डिसिपेशन की वैसे ही प्रॉब्लम होती है। Okay, so what we are using, that we are using on chip ESD protection circuit we are providing in the CMOS chips. Okay, so extra एनर्जी जो हमारी है उसको डिसिपेशन से बचाने के लिए we are using this, इसकी एक सेपरेट प्रोडक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये हमारा MOS हो गया। So this all we have discussed about the MOSes. Okay, so this all about the MOS and the CMOS. MOS में हमने सिर्फ NMOS सर्किट की बात की है, PMOS की बात नहीं की है। PMOS will also function similar. So now I want to take you back to some short other logic families. So it is like, yeah, so हमारे जो कोर्स में है वो CMOS है, ठीक है, MOS है, CMOS है, TTL है, ECL है, और DTL और RTL दो और हैं, ठीक है। और अच्छा IIL है, वो मैं आपको एज एन असाइनमेंट दूंगा, so you have to cover it by in the assignment. Okay, so let's talk about the RTL. These two are the last two technologies that we are going to study, the logic family that we are going to study, then we'll finish wind up this unit. Okay. Developed at Fairchild Semiconductor for Apollo Guidance Computer 1962. So RTL is रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी होंगे और ट्रांजिस्टर्स भी होंगे, दोनों होंगे, ठीक है। बिल्ट यूजिंग रजिस्टर्स आर एज द इनपुट नेटवर्क एंड बाइपोलर जंक्शन। सो ये सब उसकी कुछ स्टार्टिंग के डेवलपमेंट्स हैं RTL सीरीज के। So special type of RTL gate known as direct coupled transistor logic gate is one wherein the bases of the transistor are directly to the input without any base resistance. ये इसका वेरिएशंस हैं, RCTL और DCTL जो है ये इसी लॉजिक फैमिली के वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो ये एक सैंपल सर्किट है जो RTL का नॉर गेट है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं नॉर गेट ये कैसे तरीके से काम करेगा। BJT एज अ स्विच पहले भी आपसे बात हो चुकी है, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मैंने उसको कहीं पर बनाया है, कहीं होगा वो, यहाँ पर नहीं है, और वो एक अलग स्लाइड में है। I'll collect all of these things and I'll give to you. So ये schematic of one transistor
RTL नॉर गेट का नॉर गेट है। तो इसमें क्या होगा, या तो ए हाई अगर हो जाए, सपोज हमारा ए हाई हो, ठीक है, so और बी भी हाई हो, so क्या होगा, the current will flow and this CMOS will be on, sorry this BJT will be on, और जब BJT ऑन होगा तो क्या करेगा, BJT एज अ स्विच काम करेगा, इस क्यू को ग्राउंड से कनेक्ट कर देगा, इस क्यू पॉइंट को, आउटपुट पॉइंट है ये हमारा, इसको क्या ग्राउंड से कनेक्ट कर देगा, तो ये हमारे तरीके से जीरो की तरफ चला जाएगा, ठीक है, जब दोनों हाई होंगे तो ये जीरो चला जाएगा। अच्छा, इन दोनों में से अगर एक भी हाई होगा, सपोज ये जो V प्लस है वही हम इन दोनों पर अप्लाई कर दें, इन दोनों में से अगर एक भी हाई होगा तो क्या करेगा ये, तब भी इस क्यू को ग्राउंड पर लेकर चला जाएगा, ओके, तब इस क्यू को हमारा ये ग्राउंड पर लेकर चला जाएगा, मीन्स लो वोल्टेज पर लेकर चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑफ होगा। तो अगर इन दोनों में से एक भी हाई होगा तो ये क्या होगा, क्यू हमारा कनेक्टेड टू ग्राउंड होगा। अच्छा, और अगर दोनों ही लो हो जाए तो क्या होगा, ये बीजेटी ऑफ हो जाएगा, जब बीजेटी ऑफ हो जाएगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, जब ये करंट फ्लो नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट सा हो जाएगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, जो वोल्टेज इस पॉइंट को वही इस पॉइंट को, यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, हाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। सो इस केस में क्या होगा, ये हमारा क्यू हाई वोल्टेज के ऊपर चला जाएगा, ओके। सो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, हाउ इट इज फंक्शनिंग, अगर एक भी हाई है तो आउटपुट इज लो, और अगर दोनों लो हैं तो आउटपुट हाई है, तो ऑब्वियसली इट्स अ नॉर गेट, ठीक है। सो दिस इज फंक्शनिंग एज अ नॉर गेट। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस इन्वॉल्व, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, देखिए एक ही ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, अगर आप इसको TTL की कंपैरिजन में देखना चाहें तो TTL में 5 ट्रांजिस्टर का सर्किट रहता है हमारा, दो, ठीक है, सो हमारे 5 ट्रांजिस्टर का सर्किट रहता है, 5 दो 4 ट्रांजिस्टर रहता है, और उसमें भी एक ट्रांजिस्टर जो है वो हमें स्पेसिफिकली बनाना होगा विद मल्टीपल एमिटर्स। सो इसमें ये एडवांटेज है यहाँ पर कि मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर व्हिच वाज एन इम्पोर्टेंट कंसीडरेशन, ठीक है। तो असल में ये मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर का इशू ये असल में पुराना है, क्योंकि आपने इसको देखा होगा, इसका जब डेवलपमेंट ऑफ 1962 का है, ठीक है। तो ये इशू ऑफ ट्रांजिस्टर में तब था जब हम एक एक ट्रांजिस्टर को बनाना बहुत महंगा था, एक ट्रांजिस्टर बना के हम इंडिविजुअली यूज करते थे, ठीक है। तो जब आईसी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था तो हम एक एक ट्रांजिस्टर को बनाकर ऐसे यूज करते थे, तो अब हमें इस टाइम ट्रांजिस्टर को बनाना महंगा पड़ता था, तो हमें एज अ रेजिस्टर सस्ता समझ में आता था, बट नाउ द थिंग्स हैज रिवर्स, making transistor is cheaper than making a resistance, so now this is not beneficial in present technology. In fact, the forming resistance is more expensive as compared to the transistor. So इसका DCTL version है, it is better than the RTL also. So limitations क्या थे, साइज इसका बड़ा था, स्पीड लो थी, लिमिटेड फैन आउट था, पुअर नॉइज मार्जिन था, ठीक है। DCTL गेट सफर फ्रॉम अ फिनोमेना नोन एज करंट हॉगिंग, ठीक है। सो ये करंट वेरी करती रहती है इसमें, ठीक है, आप इसको समझ लीजिए बस। Okay, so we were having this. These were the drawbacks of this RTL technology, and because of this became obsolete. And I told you, as I told you, that this was more prominent at the time when making transistor was difficult and expensive task. Okay, so then we move to the because resistance always dissipate power, so it is better option to replace resistance by a diode, so we can replace resistance by diode. So if we replace resistance by diode, you know that diodes are always not always on, okay, they are always they are on in particular condition, okay, when the anode voltage is higher than the cathode voltage, so they provide some of the, like you can say that not always on conditions automatically, and a limitation also provided in the noise margin. DTL was again made by the Fairchild and the Westinghouse. Technology for designing and fabricating digital circuits wherein logic gates employ both diode and transistor. नाम से ही पता चल रहा है कि डायोड और ट्रांजिस्टर इसमें यूज करते हैं, ठीक है। इसका मेन ड्रॉबैक है DTL की जो प्रोपगेशन डिले है वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि डायोड में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में डायोड का जो जब डिस्चार्ज होता है डायोड मींस स्टेट चेंज करता है, ऑफ से ऑन या ऑन से ऑफ स्टेट जब चेंज करता है, पर्टिकुलर जब ऑन से ऑफ स्टेट में जाता है तब वहां पर क्या होता है, जो कैरियर कलेक्ट हो जाते हैं उनको रिमूव करने में टाइम लगता है, ठीक है।
सो इसी वजह से हमारा ये इसमें डिले थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो logic gating function and is performed by a diode network and amplifying function is performed by a transistor। yes, लेकिन अब डायोड में एक प्रॉब्लम ये है कि आपको नॉट मिलना बाय डायोड इटसेल्फ इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो जो ट्रांजिस्टर है ये एक तरीके एम्पलीफिकेशन काम कर रहा है, और ये हमारा जो डायोड है ये हमारा काम कर रहा है एक तरीके से लॉजिक का काम करेगा, डायोड ऑन है या ऑफ है। सो आप इस सर्किट को देखकर समझ सकते हैं। देखिए हमें क्या है, इस ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ स्टेट को देखना है, ठीक है। तो इस ट्रांजिस्टर की ऑन ऑफ स्टेट को देखना है। अगर ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो क्यू ग्राउंड से कनेक्ट होगा, ठीक है, नियर बाई ग्राउंड होगा। और अगर ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो क्यू हाई वोल्टेज से कनेक्ट होगा। अब ट्रांजिस्टर ऑन कब होगा, जब यहाँ पर लार्ज वैल्यू ऑफ करंट आएगी। ये लार्ज वैल्यू ऑफ करंट कैसे आएगी, जबकि करंट यहाँ पर ऐसे फ्लो हो सके। लेकिन ठीक है, अगर ये वोल्टेज कम हो जाएगा तो करंट, तो आप जानते हैं कि लो रेजिस्टेंस पाथ रही थी तो करंट सारी सारी यहाँ फ्लो हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अगर हम जीरो वोल्टेज लगाते हैं, ठीक है, जीरो वोल्टेज लगाते हैं, ये रेजिस्टेंसेस की वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट नहीं की गई है। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर ऐसी सिलेक्ट की जाती है जिससे कि हम अपना ऑपरेशन को अचीव कर सकें, क्योंकि डायोड का भी ऑन स्टेट में सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। अगर हम दोनों को जीरो कर दें, ठीक है, अगर हम दोनों को जीरो कर दें तो क्या होगा, ये हमारा डायोड ऑन हो जाएगा तो करंट के सारी की सारी करंट यहाँ फ्लो होगी। अगर हम ए जीरो है तो करंट यहाँ ऐसे फ्लो हो जाएगी, ज्यादा करंट यहाँ नहीं जाएगी, तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, आउटपुट हाई चला जाएगा। अगर बी भी जीरो हो जाए, ए वन रहे या ए पे हाई वोल्टेज रहे, बी जीरो हो जाए, तब सारी करंट यहाँ चली है, क्यों, करंट जो है लोअर रेजिस्टेंस पाथ प्रेफर करती है। तो हम हमेशा ये R3 और R4 की वैल्यू ज्यादा सिलेक्ट करेंगे इस रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, ठीक है, जिससे कि जब ये ऑन हो, डायोड का रेजिस्टेंस ऑन हो, डायोड ऑन हो, तो ये करंट ऐसे फ्लो हो जाए, ठीक है। सो जब भी कोई दोनों में से कोई एक भी लो होगा तो करंट सारी की सारी यहाँ चली जाएगी और डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, डायोड हमारा ऑन हो जाएगा और सारी करंट हमारी यहाँ चली जाएगी। सो हमारा ट्रांजिस्टर Q1 ऑफ रहेगा, Q will go to the high voltage and okay, so Q will remain high। अच्छा, अब दोनों लो, दोनों हाई हो जाए तो क्या होगा, ये भी हाई तो ये भी, ये ऑफ हो जाए, क्यों, यहाँ पर V प्लस है और आपने यहाँ पर भी V प्लस लगा दिया। आप जानते हैं एनोड पर V प्लस से ज्यादा वोल्टेज होना चाहिए इसको ऑन करने के लिए, क्यों, कैथोड पर अगर V प्लस है तो एनोड पर V प्लस से ज्यादा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑफ हो जाएंगे। जब ये दोनों ऑफ होंगे तो करंट ऐसे फ्लो करेगी और ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो क्यू को जीरो पर ले आएगा, सो द ट्रांजिस्टर विल गो टू द zero state and hence this will be and this will act as the DTL NAND gate। I hope the function is simple, not that difficult। Okay, so आपको individual components को याद रखना है। The advantage, what are the advantages of this DTL? Offers better noise margin than RTL, greater fan outs than RTL, ठीक है, इसमें हम ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और नॉइज मार्जिन भी हमें बेटर RTL ही बेटर देते हैं। So the obvious disadvantage of RTL, it's high power dissipation when the transistor is switched on, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे रेजिस्टेंसेस भी कनेक्टेड हैं। तो जब ट्रांजिस्टर ऑफ है तो देखिए सिर्फ कौन सा एक R1 ही ऑन है, देखिए ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो R1 R3 R4 R2 सारे के सारे करंट कंज्यूम करते हैं। तो जब ऑन स्टेट में क्या बहुत ज्यादा करंट कंजम्पशन होती है। लो स्पीड स्पेसिफिकली इन कंपैरिजन टू TTL, तो TTL से भी वर्स हैं ये दोनों फैमिली। तो अब आप देखें अगर ओवरऑल कंपेयर करें तो सब ये दोनों वर्स हैं। सबसे अच्छा सीमॉस है स्पीड के मामले में भी, पावर के मामले में भी। TTL ECL जो है वो स्पीड के मामले में सीमॉस से भी बेटर है, ठीक है, लेकिन पावर कंजम्पशन में पुअर है। ECL में नॉइज मार्जिन अच्छे नहीं है, ठीक है, सो और TTL में भी नॉइज मार्जिन अच्छे नहीं है, ठीक है। ECL में TTL में लार्ज नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कंपोनेंट्स भी हैं, सो ये सारे आपस में कंपैरिजन आप देख सकते हैं। Okay, so this ends the this unit। Okay, so if you have any doubt, I'm there, you can ask me। Okay, so let's stop this।